Last class we were discussing about average rate of reaction. Today we will discuss about instantaneous rate. So, what is the difference between average rate and instantaneous rate? Instantaneous rate of a reaction is the change in concentration over a short period of time, means in a minimum time, where time t tends to 0 is known as instantaneous rate of reaction. The ratio of change in concentration in a chemical reaction to the time period is known as instantaneous rate. Change in concentration with respect to short time period is known as instantaneous rate. So units of this instantaneous rate is moles per liter per time. It can be calculated from the slope of tangent of a concentration time graph. This is important, that how we can calculate the instantaneous rate. Slope of tangent to the concentration time graph. So if we plot a graph of concentration of product versus time, and if the graph is like that, and if I want to calculate the value of instantaneous rate at time t tends to 0, that means delta t change in time has to be approaches 0. It's not 0, it's approaches 0. It's a minimum time. So tangent, I have to draw a tangent to this particular curve. So in this way, if we plot a graph of concentration versus time, and I am to calculate the instantaneous rate, and if I draw a tangent, okay, if I draw a tangent to the curve, then I can calculate the value of instantaneous rate of reaction. So next is this is a particular example in which there is a calculation of instantaneous rate. The rate of reaction at 40 seconds. If I have to calculate the rate of reaction at 40 seconds, then I have to plot the tangent in a way that 40 seconds is exactly below it. So the exact value of rate of reaction is 120 minus 70 divided by 65 minus 5. This is representing how we can calculate the value of rate of reaction. यहाँ से आपने slope निकालना है. Slope क्या होता है? y2 minus y1 divided by x2 minus x1. y2 की वैल्यू, ये ऊपर वाली जो वैल्यू रहेगी y2, ये y1 माइनस ऑफ ये वाली वैल्यू x2 x1. Okay, next is how we can express the rate of reactions. So rate of reaction expression, the representation of rate of reaction in terms of concentration of reactant. Rate law या फिर rate expression या फिर rate equation कहलाता है. The representation of rate of reaction in terms of concentration. Okay, like we can see, the rate expression for 2NO plus O2 will give you 2NO2 KNO2O2. Okay, this NO2 is NO has power to O2. Okay, now if we consider the another reaction BrO3 negative 5Br negative plus 6H positive will give 3Br plus 3H2. The rate expression for this kind of reaction is given by K BrO3 negative Br negative H positive K power 2. Okay, so rate expression is basically the multiplication of concentration of reactant and multiply by rate constant. Okay, and raised to power stoichiometric coefficient, which may be or may not be stoichiometric coefficient, means उनमें stoichiometric coefficient का इतना रोल नहीं है. So rate of reaction is experimentally determined. Okay, and from that we can know that which amount of concentration of reactant is dependent upon which amount. Okay, next is order of reaction. The addition of power of concentration terms of reactant in rate law is known as order of reaction. This is important. If we say we have a reaction A plus 2B is giving you C plus T. Rate law is given by K A ki power X B ki power Y. Now X and Y, X may be 1, maybe 2, maybe 3, and Y may be 1, 2, 3, whatever. There is no need that X and Y has stoichiometry value. So the addition of power of concentration term in the rate law expression is known as order of reaction. Now how we can calculate the value of order? आपने सिंपल जो ये पावर है x और y इनको ऐड करना है, तो आपके पास क्या आ जाएगा? ऑर्डर आ जाएगा रिएक्शन का. ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए एक्स है, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी क्या है? y है.
Okay, now the total order of reaction or overall order is x plus y. Next is, what are the units of order of reaction? This is important. अब units of order of reaction के लिए आपको unit of rate constant निकालना पड़ेगा पहले कि unit constant के rate different order reactions के लिए क्या रहते हैं. So rate constant k किसके बराबर होता है? rate by concentration की power n. अगर आपके पास nth पावर की कोई रिएक्शन है, nth ऑर्डर की कोई रिएक्शन है. अब रेट के लिए क्या यूनिट्स होते हैं? मोल्स पर लीटर पर सेकेंड. और कंसंट्रेशन मोल्स पर लीटर होती है की पावर n. तो आपके पास एग्जैक्टली जो रेट कांस्टेंट के यूनिट्स आ जाते हैं वो क्या आ जाते हैं भाई? अगर आप इसे सोल्व करते हैं तो मोल्स पर लीटर की पावर मोल्स पर लीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय मोल्स पर लीटर की पावर n. ओके, यू विल गेट द वैल्यू. अगर आपके पास फर्स्ट ऑर्डर है तो आपने वैल्यू 1 पुट करनी है. अगर 1 पुट करते हैं तो आपके पास पर सेकेंड आएगा. अगर सेकेंड ऑर्डर है तो लीटर पर मोल पर सेकेंड आएगा. ओके, सो नेक्स्ट इज this is a particular problem which is solving how we can calculate the rate of a particular reaction, order of a particular reaction. Let's say from the rate expression of following reaction determine the order. ऑर्डर निकालना भी. हमारे पास रिएक्शन है 3NO प्लस इज गिविंग यू N2O. सो रेट इज इक्वल टू KNO की पावर 2. जितनी पावर है वो क्या होता है? ऑर्डर होता है. तो ऑर्डर इस रिएक्शन का क्या रहेगा? 2 रहेगा. हमें इसके क्या निकालना है? रेट कांस्टेंट की यूनिट्स भी निकालना है. अब रेट कांस्टेंट की यूनिट कैसे निकालेंगे? अभी हमने फॉर्मूला देखा, मोल्स पर लीटर पर सेकेंड की डिवाइडेड बाय मोल्स पर लीटर, मोल्स पर लीटर की पावर n. ओके, सो अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ और इसकी पावर 2 करता हूँ, n क्या है भाई? ऑर्डर है. और यहाँ पे ऑर्डर कितना है? 2. तब आपके पास क्या आ जाता है? लीटर पर मोल पर सेकेंड. नेक्स्ट इज अगेन ऑन द सेम लाइन्स, रेट इज इक्वल टू KH2O2 I की पावर I नेगेटिव. ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 विद रिस्पेक्ट टू H2O2, 1 विद रिस्पेक्ट टू I नेगेटिव. 2 हो गया भाई. डायमेंशन सेम रहेंगे. जैसे अगर ऑर्डर सेम है किसी रिएक्शन का तो उसके यूनिट्स भी सेम रहेंगे. रेट कांस्टेंट यहाँ पे ऑर्डर क्या है रिएक्शन का? 3/2 है. अब 3/2 है तो ऑर्डर क्या रहेगा? और डायमेंशंस क्या रहेंगे रेट कांस्टेंट के? मोल्स पर लीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय मोल्स पर लीटर की पावर 3/2. आप इसे सोल्व करेंगे, आपके पास यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट आ जाएंगे. यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट भी सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है. ओके, सो अगेन KC2H5 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 है तो यूनिट्स क्या रहेंगे रेट कांस्टेंट के? मोल्स पर लीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय मोल्स पर लीटर. सो नेक्स्ट इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन. व्हाट आर द रेट और इंस्टेंटेनियस रेट और डिफरेंट रेट ऑफ रिएक्शन अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर्स, डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस. और इनको इंटीग्रेटेड रेट लो भी बोलते हैं भाई. The first or next thing we will discuss about it is integrated rate laws. इंटीग्रेटेड रेट लॉज हमें बताते हैं कि कैसे एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कंसंट्रेशन जो है किसी रिएक्टेंट की चेंज हो रही है. अभी तक हमने जो पढ़ा वो क्या था? वो जो था वो डिफरेंशियल रेट लॉज था. आपको याद हो तो हम रेट को कैसे लिख सकते हैं? अगर आपके पास कोई रिएक्टेंट है तो माइनस ऑफ DA/dt, ये आपके पास डिफरेंशियल रेट लो था. अब हमें इंटीग्रेटेड रेट लो निकालना है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए. अगर रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन हो रिएक्टेंट की तो उसे कौन सी ऑर्डर रिएक्शन बोलेंगे? जीरो ऑर्डर. क्योंकि ए की पावर जीरो मतलब 1. एट कंसंट्रेशन एट टाइम t concentration of A is A and at B is 0 and at time t concentration of A is A minus x and B is x. We are considering that t टाइम पे, जीरो टाइम पे ए की कंसंट्रेशन ए है, बी की जीरो है, क्योंकि कोई भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज नहीं हुआ है. किसी टाइम पे आप ए की कंसंट्रेशन को ए माइनस एक्स कंसिडर करेंगे क्योंकि बी कितना प्रोड्यूस हो गया? एक्स. सो माइनस ऑफ DA/dt इज इक्वल टू K0 इज योर रेट कांस्टेंट की पावर ए की पावर जीरो मतलब 1, किसी की भी पावर जीरो मतलब 1, क्योंकि ऑर्डर क्या है? जीरो. सो dx/dt किसके बराबर रहेगा? K0 A माइनस एक्स की पावर जीरो. इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो. तो dx/dt इज इक्वल टू K0. अब आपने क्या करना है? dt को उस तरफ लेके जाना है तो K0 dt हो जाएगा.
और इसको इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू 0 टू x कंसंट्रेशन, और dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा अभी, और t का dt का इंटीग्रेशन t हो जाएगा, तो k नॉट t आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी. सो दिस इज द वे यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ change in concentration with respect to time. X is the formation of product B. Like we can see in the reaction, the decomposition of ammonia on platinum surface is zero order reaction. What are the rates of N2 and H2 if K value is given? आपने N2 और H2 के रेट निकालने हैं माइनस ऑफ 1/2. अगर आप इस रिएक्शन के रेट को लिखेंगे तो आपको माइनस रिएक्टेंट के लिखना होता है और स्टेशियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करना होता है. माइनस ऑफ 1/2 d/dt ऑफ NH3 इज इक्वल टू d/dt ऑफ N2 इज इक्वल टू 1/3 d/dt ऑफ H2. यहाँ पे आपने क्या करना है, प्रोडक्शन रेट निकालना है N2 का और H2 का. वो आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, d/dt ऑफ N2 किसके इक्वल रहेगा भाई, रेट कांस्टेंट के इक्वल रहेगा सिंपली. बट N2 प्रोडक्शन तो रेट कांस्टेंट के इक्वल रहेगा क्योंकि N2 सिंपल है आपके पास, और H2 का प्रोडक्शन 3 टाइम्स हो रहा है ज़्यादा, N2 से उसे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, N2 और H2 का प्रोडक्शन टाइम आ जाएगा, सॉरी प्रोडक्शन कितना हो रहा है उतना आ जाएगा. सो नेक्स्ट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. ऑन द सेम लाइन्स वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. अगर आपका रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो सिंगल रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है, रेस टू पावर 1 इज नोन एज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. अगर टाइम t 0 पे कंसंट्रेशन ऑफ A इज A एंड B इज 0, एट टाइम t A is A minus x and B is x. This will remain same. The change in concentration of reactant with respect to time t is directly proportional to A minus x. अगर आपके पास रेट अगर हम इंटीग्रेटेड रेट लो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम उसे K1 कंसिडर करेंगे. इसको आपने अगेन 0 टू x, दिस इज इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू x dx बाय A माइनस एक्स K1 0 टू x dt. ठीक है, अगर आप इसे इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी दैट इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय A माइनस एक्स इज व्हाट, log ऑफ A बाय A माइनस एक्स, और t का क्या रहेगा, K1t रहेगा. ओके, व्हाट वी हैव टू इन दिस साइड इज हमें इंटीग्रेशन 0 टू x करना है. अगर हम इसकी वैल्यूज पुट करते हैं तब आपके पास जो वैल्यू है वो ये आती है, और t की वैल्यू 1 बाय K1 ln ऑफ A बाय A माइनस एक्स आती है. अब लॉग नेचुरल लॉगरिथम को अगर आपको लॉग टू द बेस 10 कन्वर्ट करना है तो आपको 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. 2.303 बाई K1 लॉग ऑफ A बाई A माइनस एक्स. सो K1 की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, 2.303 log of A by A minus x. Okay, so this is the problem which is related to how we can calculate the value of time or concentration, whatever we need in a question. The first order reaction has a rate constant this much. How long it will take of 5 gram of this reactant to reduce to 3 gram. 5 ग्राम रिएक्टेंट को 3 ग्राम में रिड्यूस करना है. तो आपने क्या करना है, आपके पास फॉर्मूला हमेशा याद रखना भाई, T इज इक्वल टू 2.303 बाई के लॉग ऑफ A बाई A माइनस एक्स. ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए फॉर्मूला है जो इसमें लिखा हुआ है 2.303 बाई के लॉग ऑफ A बाई A माइनस एक्स, या फिर लॉग ऑफ R नोट बाई R. R नोट आपकी इनिशियल और R जो है वो फाइनल. इनिशियल कंसनट्रेशन 5 ग्राम थी भाई, और फाइनल कितनी होगी 3 ग्राम. 5/3 करेंगे, आप इसको सोल्व करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा 444 सेकेंड. इतने सेकेंड्स में आपका रिएक्टेंट जो है वो 5 ग्राम से 3 ग्राम में रिड्यूस हो जाएगा. Next we will discuss in our next lectures. This is all about like integrated rate law. Try to remember this thing, that integrated rate law for first order reaction, the time is equal to 2.303 by k log of A by A minus x. Okay, thank you so much.